Assalamu alaikum dear students. In the previous class, we are on exercise 10.3 and so far we have discussed 16 questions of this exercise. Now remaining 2 questions of this exercise, and after then we are going to start the next concept, and that is vector or cross product of vectors. Very much important, but before that there lies question number 17 of this exercise, and that question number 17 is all about, that is, we have 3 given vectors, vector A, vector B and vector C. We have 3 given vectors. We will name them as A, B and C, and we have to prove that they form a right angled triangle. So we have 3 vectors and we have to prove that they form a right angled triangle, and suppose the name of that right angled triangle is ABC. It is one side is represented by a vector, and suppose we will keep that vector as A vector, and that has been given as, this A vector has this components as 2i minus j plus k, 2i minus j plus k, and we will keep this vector as suppose B vector, and it has again been expressed in terms of its components as, its components are actually I minus 3j minus 5k, I minus 3j minus 5k, and suppose we have vector C like this, and it has again been expressed in terms of its components, and the components of this vector are 3i minus 4j minus 4k, 3i minus 4j minus 4k. An important question of this exercise, question number 17, and we have to prove that these 3 vectors, A vector 2i minus j plus k, B vector I minus 3j minus 5k, and C vector 3i minus 4j minus 4k form a right angled triangle. They are the sides of they are forming a right angled triangle. So how we can prove? First, we shall prove that is the vectors A, B and C are forming a triangle. तो पहले ये प्रूव करेंगे कि एक ट्रायंगल को बना रहे हैं. 3 वेक्टर्स एक ट्रायंगल को कब बनाएंगे? जब वहां पे सेटिस्फाई होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. यानी अगर 2 वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के बराबर आ रहा है, तो डेफिनेटली द three vectors will represent a triangle because as per the triangle law of addition of vectors. So पहले हम A वेक्टर को सपोज B वेक्टर के साथ सम करेंगे. अगर इनका सम तीसरे वेक्टर C के बराबर आ रहा है, तो ये तीनों वेक्टर्स जो है डेफिनेटली फॉर्म करेंगे एक ट्रायंगल. फिर हमें प्रूव करना पड़ेगा कि दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, मींस वन ऑफ द एंगल्स is of measure 90 degree, is of measure pi by 2 radians. So how we can prove? फिर हम A वेक्टर और B वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे. तो जिधर A वेक्टर एक नॉन जीरो वेक्टर है, B वेक्टर एक नॉन जीरो वेक्टर है, अगर 2 नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है, तो ऑब्वियसली दे मस्ट बी परपेंडिकुलर. सो हमें मिला यहां पे परपेंडिकुलर. स्टेप फर्स्ट में मिलेगा कि इट्स अ ट्रायंगल, स्टेप सेकंड में मिलेगा कि यहां पे है राइट एंगल, तो डेफिनेटली दे विल फॉर्म ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल. तो पहले इन वेक्टर्स का नाम दे देंगे. सपोज A से डिनोट करेंगे, B से डिनोट करेंगे एंड C से डिनोट करेंगे. तो यहां पे लिखेंगे, मेंशन कर देंगे, लेट द गिवन वेक्टर्स बी, let the given vectors be, A vector is equal to 2i, A vector is equal to 2i minus j plus k, B vector is equal to I minus 3j minus 5k, and C vector is equal to 3i minus 4j minus 4k. ये है हमारे पास 3 गिवन वेक्टर्स, एंड वी हैव टू प्रूव दैट दे आर फॉर्मिंग ए ट्रायंगल. ऐसा एक क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज 10.2 में भी कैलकुलेट कर रखा है, लेकिन वहां पे हमने डिफरेंट मेथड से, वहां पे हमने मैग्नीट्यूड ऑफ AB, मैग्नीट्यूड ऑफ BC और मैग्नीट्यूड ऑफ AC निकाला था. तो फिर वहां पे अगर ये जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुई थी वहां पे, तो हमने कहा था कि दे विल फॉर्म द राइट एंगल ट्रायंगल. तो यहां पर हम एक डिफरेंट तरीके से करेंगे. यहां पर हम यूजेज करेंगे किसका? डॉट प्रोडक्ट का. सो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि इट्स अ ट्रायंगल. तो कैसे प्रूव करेंगे? अगर 2 वेक्टर्स, अगर इन 3 वेक्टर्स में से 2 वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के बराबर आ रहा है, so if A plus B is equal to C, if A and B are 2 vectors represented by 2 sides of a triangle taken in same order, and their sum is a vector represented by the third side taken in opposite order, then they must form a triangle. So here suppose we are adding A and B. So here vector A
plus vector b is equal to vector a का अपना वैल्यू दैट इज 2i minus j plus k, और उसके साथ ऐड कर देंगे b वेक्टर विच इज i minus 3j minus 5k. So that's equal 2i plus i that is 3i, हाँ जी minus j minus 3j that is minus 4j and plus k minus 5k that is minus 4k. तो implies हमें मिला जिगरा a वेक्टर plus b vector is equal to 3i minus 4j minus 4k. 3i minus 4j minus 4k, what is that? C vector. So a vector plus b vector, a vector plus b vector c vector के बराबर आ रहा है, तो obviously they will form a triangle. Therefore by triangle law of addition of vectors, therefore by triangle law of addition of vectors, हाँ जीरा a b c vectors a b and c form a triangle. तो ये एक ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे हैं, एक ट्रायंगल को बना रहे हैं. अब हमें जिगरा प्रूव करना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल जो है इट्स एक्चुअली अ राइट एंगल ट्रायंगल, मींस one of the angles is of measure 90 डिग्री. तो कैसे प्रूव करेंगे? हम सपोज a वेक्टर का डॉट कर देंगे b वेक्टर के साथ. अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है, a एक नॉन जीरो वेक्टर है, b एक नॉन जीरो वेक्टर है, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है तो ऑब्वियसली दे मस्ट बी परपेंडिकुलर, और वही हमें चाहिए यहां पे. तो नाउ हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर एंड दैट्स इक्वल टू, हाँ जिगर, a is a vector which has been expressed in terms of its components, b is a vector which has been represented in terms of its components, and we have to find their dot product. When two vectors are expressed in terms of their components, then their dot product is obviously equal to, yes, sum of products of their corresponding rectangular components, scalar components. तो पहला स्केलर कंपोनेंट 1, यहां पे पहला स्केलर कंपोनेंट 1, सो 2 into 1 प्लस यहां पे दूसरा स्केलर कंपोनेंट -1, यहां पे दूसरा स्केलर कंपोनेंट -3, सो -1 into -3, हाँ जिगरा, प्लस यहां पे तीसरा स्केलर कंपोनेंट 1, यहां पे तीसरा स्केलर कंपोनेंट -5, सो 1 into -5 implies a dot b, vector a dot vector b is then straight away equal to, yes, 2 1s are 2, हाँ जिगरा, minus into minus is plus, 3 1s are 3, and plus into minus is minus, 5 1s are 5. So implies हमें मिला कि a dot b is equal to 2 plus 3 is 5, 5 minus 5 is obviously equal to 0. So a dot b, the dot product of vectors a and the dot product of vector b is equal to 0. But a and b are two non-zero vectors. When the dot product of two, yes, non-zero vectors is equal to 0, they must be perpendicular. So therefore a vector is perpendicular to b vector. Now jigra, in the first step we have proved that a vector, b vector and c vector form a triangle, and in the second step we have proved that a is perpendicular to b. So it's a triangle and one of the angles is of measure 90 degree, means obviously it would be a right angled triangle. Therefore vectors a, b and c form a right angled triangle. तो ये definitely एक right angled triangle को form करेंगे. This was all about question number 17 of this exercise, which is pretty important as per this exercise is concerned. So next lies the last question of this exercise, which is an objective type. We have given a vector in question number 18, the last question of this exercise, which is an objective type, and in that question we have given a vector a whose magnitude is equal to small a. Then lambda a is a non-zero and lambda is a non-zero scalar, then lambda is a unit vector if. So we have a vector a whose magnitude is equal to small a and lambda is a scalar. Now the question is all about lambda a would be a unit vector if.
द वैल्यू ऑफ लेमडा इज, हमें निकालना है जिगरा वैल्यू ऑफ ए या निकालना है वैल्यू ऑफ लेमडा। तो गिवन फॉर अ वेक्टर ए, गिवन फॉर अ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है वो स्मॉल ए के बराबर है। नाउ अब हमसे पूछा जा रहा है कि लेमडा ए वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर कब। नाउ लेमडा ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर इफ लेमडा एक स्केलर है, ए एक वेक्टर है, तो लेमडा ए वेक्टर कब होगा एक यूनिट वेक्टर इफ, यस जिगरा, it would be a unit vector if its magnitude is equal to 1. So if magnitude of lambda a vector is equal to 1, where lambda is a non-zero scalar, ये वहां पे मेंशन किया गया है कि lambda is a non-zero scalar, तो that is if, इसका क्या मतलब, lambda एक non-zero scalar है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये अंदर मॉड में है तो इसको मॉड में ही रखेंगे। सो मॉड लेमडा इनटू अलग आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, राइट, मॉड अलग अलग अप्लाई कर दिया। सो मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ लेमडा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1, दैट इज इफ, हाँ जी गर, so magnitude of a vector, this is mod lambda, magnitude of a vector is given, what is that, small a, so into आएगा जिगरा small a and that's equal to 1, that is if, yes जिगरा, अब a को यहां पे रख दो तो that's equal, ये mod lambda जो है ये यहां पे मल्टीपल है तो उस साइड में डिवाइड होगा, so a must be equal to 1 divided by mod of lambda, so a का वैल्यू आएगा 1 divided by mod lambda, तो कौन सा ऑप्शन वहां पे करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन डी इज द, यस, 1 divided by mod lambda, so option D is as per the question, as per question number 18, D option is the correct option. तो जिगर this is all about exercise 10.3. Now we are going to discuss the next operation, that's the next type of operation in case of product. हमने पढ़ा कि product of two vectors can be done in two ways. One is called the scalar or dot product of vectors that we have already discussed and that we have already used in the exercises. Now we are going to discuss the second part of this product and that's called vector product or cross product of vectors. तो क्या होता है जिगरा ये vector product or cross product of vectors? We are going to discuss that. Hi dear students. So next we have the concept and that's called cross product or vector product of two vectors. As I have mentioned earlier, okay, product of two vectors can be done in two ways. One is called the scalar or dot product of two vectors. Actually the term is dot product and the dot product of two vectors comes out to be a scalar quantity. That is why dot product of vectors is also called a scalar product. Now here lies the cross product, the next type of multiplication of vectors, next type of product of vectors, and that's called cross product. Actually the term is cross product, but it is also called vector product of two vectors. Why vector product? Because the cross product of two vectors comes out to be a vector quantity. The dot product of two vectors comes out to be a scalar quantity, but the cross product of two vectors comes out to be a vector quantity. That is why the cross product of vectors is also called the vector product. अब ये cross product या vector product क्या है, कैसे करेंगे, इसकी definition क्या है, इसमें से जो आउटकम रिजल्ट आता है वो क्या आता है, कैसे आता है? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन एंड व्हाट इज दैट, द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर वेक्टर्स v1 एंड v2. अगर आपके पास दो प्रॉपर वेक्टर्स हैं v1 और v2 तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट इन एन असाइन्ड ऑर्डर विद इन द ब्रेसेस हमने मेंशन यहां पे किया है कि इन एन असाइन्ड ऑर्डर, यानी इसी ऑर्डर में पहले v1 बाद में v2. क्यों जिगरा? क्योंकि unlike dot product, the cross product of vectors is not commutative. So instead of v1 cross v2, we cannot write v2 cross v1. That is why in the braces we have here written as in an assigned order, denoted by, जिसे denote कैसे करेंगे, v1 cross v2 से पढ़ा क्या जाता है, read as v1 cross v2 पढ़ा जाता है, v1 cross v2 is defined as a vector.
तो जिगरा जैसे मैंने कहा कि जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो एक क्या आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो इसीलिए इज डिफाइंड एज अ वेक्टर, वो एक ऐसा वेक्टर होता है। तो आपके पास दो प्रॉपर वेक्टर्स हैं v1, आपके पास दूसरा प्रॉपर वेक्टर है v2। आपने इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया, आपने इन दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट किया, वो क्या आएगा, एक ऐसा वेक्टर। कौन सा वेक्टर, परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, जो v1 पे भी परपेंडिकुलर होगा, v2 पे भी परपेंडिकुलर होगा। यस, इन अ डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द एडवांस ऑफ राइट हैंड सिक्रिव, जो हमें दे देगा एक राइट हैंड सिक्रिव, विच कैरीज द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड, जो कैरी करेगा पहले वेक्टर v1 को टू द वेक्टर v2, एंड हैविंग मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस रिजल्टेंट वेक्टर v1 क्रॉस v2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मॉड्यूलाई, इनके मॉड्यूलाई के प्रोडक्ट के बराबर, एंड साइन, डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कोसाइन, यहां पे साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो जिगरा प्रीटी सिंपल है। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज v1 एंड v2, आपके पास दो वेक्टर है, एक है वेक्टर v1 और दूसरा है जिगरा वेक्टर v2। दिस इज आवर वेक्टर v1 एंड दिस इज आवर वेक्टर v2। अगर आप इस वेक्टर v1 का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे v2 वेक्टर के साथ, तो वहां पे एक वेक्टर निकल के आएगा, वहां पे एक वेक्टर निकल के आएगा विच मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ v1 एंड v2। ये वेक्टर जिसका नाम होगा जिगरा v1 क्रॉस v2, ये v1 पे भी परपेंडिकुलर होगा, ये v2 पे भी परपेंडिकुलर होगा। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ v1 एंड v2, v1 और v2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। और इसकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी हमें, एंड विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द एडवांस ऑफ राइट हैंड सिक्रिव, इसकी डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करेगा एक राइट हैंड सिक्रिव जिसको हम राइट हैंडेडली घुमाएंगे ऐसे। और जो क्या करेगा, जब आप इसे राइट हैंडेडली घुमाओगे ऐसे, जो क्या करेगा, विच कैरीज द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड, जो v1 को लेके जाएगा किस पे, v2 पे। कैसे, मैं यहां पे जिगरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सपोज आपके पास ये वेक्टर v1 है और आपके पास जिगरा ये वेक्टर v2 है, एंड सपोज दे आर इंक्लाइनेड विद सम एंगल। ये आपके पास वेक्टर v1 है और जिगरा ये आपके पास सपोज वेक्टर v2 है। दीज आर टू वेक्टर्स, ठीक है जिगरा। सपोज दिस इज आवर वेक्टर v1, दिस इज आवर वेक्टर v2, दे आर इंक्लाइनेड एट सम एंगल। और जब आप इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ये वेक्टर v1 है, याद रखना, ये वेक्टर v1 है, ये वेक्टर v2 है, दे आर इंक्लाइनेड विद सम एंगल विद ईच अदर। तो जिगरा जब आप इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, वो किसके बराबर आएगा, एक ऐसे वेक्टर के बराबर दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, जो इन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो दे देगा एक राइट हैंड सिक्रिव, जिसे अगर आप रोटेट करोगे वो क्या करेगा, दैट कैरीज द वेक्टर v1 टू वेक्टर, वो इस वेक्टर v1 को वेक्टर v2 के पास ले जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन होगी इस वेक्टर v1, तो ये है जिगरा v1, ये है आपका v2, तो ये क्या है, v1 क्रॉस v2। इसकी डायरेक्शन मेंशन करेगा एक राइट हैंड सिक्रिव विच ऑन रोटेटिंग कैरीज द वेक्टर v1 टू वेक्टर v2, जो वेक्टर v1 को वेक्टर v2 के पास ले जाएगा। ऐसे भी बता सकते हैं। तो जिगरा फिर से आप ध्यान रखना, मैं फिर से आपको समझा रहा हूं। सपोज ये आपका वेक्टर v2 है और सपोज ये आपका वेक्टर v1 है, ऐसे। ये आपका वेक्टर v1 है, ये ऊपर वाला जो मार्कर मैंने लिया है इट्स अ वेक्टर v1, और ये आपका वेक्टर जो है इट्स वेक्टर v2। तो जब आप इस वेक्टर v1 को क्रॉस करोगे वेक्टर v2 के साथ, वहां पे एक वेक्टर मिलेगा that must be perpendicular to both v1 as well as v2, or we can say that must be perpendicular to the plane of vectors v1 and v2। लेकिन जिसे आप क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, अब ये है वेक्टर v1, ये है वेक्टर v2, तो ये क्या है, दिस इज v1 क्रॉस
v2 मींस विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ v1 एज वेल एज v2। अब इसकी डायरेक्शन कौन दे देगा? एक राइट हैंडेड स्क्रू, जिसको अगर आप रोटेट करोगे, देखना जिगरा, जिसको अगर आप रोटेट करोगे राइट हैंडेडली, आप इसको राइट हैंडेडली रोटेट करो तो ये क्या करेगा? ये धीरे धीरे इस वेक्टर v1 को ले जाएगा किस पे? वेक्टर v2 के साथ। तो ये जो इसकी रोटेशन ऐसे है विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर v1 क्रॉस v2। ठीक है जिगरा? तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर v1, दूसरा है जिगरा वेक्टर v2। तो अगर आप इस वेक्टर v1 का क्रॉस कर दोगे वेक्टर v2 के साथ, यहां से एक वेक्टर आएगा और वो वेक्टर जिसका नाम होगा v1 क्रॉस v2, दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ v1 एंड v2, और वी कैन से दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स v1 एंड v2। और इस v1 क्रॉस v2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड्स। इस मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2 के प्रोडक्ट के बराबर। और इसकी डायरेक्शन कौन दे देगा? एक राइट हैंडेड स्क्रू, जिसको अगर आप रोटेट करोगे, जैसे मैंने अभी मार्कर्स पे बता दिया, जिसको अगर आप रोटेट करोगे वो वेक्टर v1 को ले जाएगा किस पे? वेक्टर v2। दैट इज, इसका क्या मतलब? प्रोडक्ट ऑफ दियर मॉड्यूलाई एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये यहां पे हम भूल गए थे कि अगर आपके पास वेक्टर v1 है, वेक्टर v2 है, आप इसका क्रॉस कर दोगे तो वहां से एक वेक्टर v1 क्रॉस v2 आएगा, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ v1 एंड v2 एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो उसका साइन कर दो। तो जिगरा मैग्नीट्यूड ऑफ v1 को मल्टीपल करो मैग्नीट्यूड ऑफ v2 के साथ, मल्टीपल करो साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम के साथ, और वो दे देगा इस v1 क्रॉस v2 का मैग्नीट्यूड। इसका क्या मतलब? दैट इज v1 cross v2, the cross product of vectors v1 and v2, which is read as v1 cross v2, must be equal magnitude of vector v1, magnitude of vector v2 sin theta। लेकिन जिगरा इसके साथ और एक क्वांटिटी होती है, दैट इज n कैप। ये n कैप प्रोवाइड कर देती है डायरेक्शन। So v1 cross v2 is equal to magnitude of v1, product of their magnitudes, product of their moduli, sine of angle between them, sine of angle between them, and this n cap will give you the direction. Because the cross product of two vectors is a vector quantity. Magnitude of v1 scalar, magnitude of v2 scalar, sin theta scalar, तो n cap इसे बना देता है क्या? वेक्टर। where n cap जो होता है that is the unit vector along v1 cross v2, or that is the unit vector perpendicular to both v1 and v2। तो actually n cap जो होता है वो होता है unit vector along the cross product of vectors along v1 cross v2, where यहां पे मेंशन कर देंगे where theta क्या है जिगरा? theta 0 less or equal to theta is less or equal to pi is the angle between them, is the angle between v1 and v2। थीटा है जिगरा v1 और v2 के बीच में एंगल, एंड और n कैप क्या है? n कैप इज ए यूनिट वेक्टर, एंड n कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ v1 and v2, and n cap is a unit vector perpendicular to both v1 and v2 and positive। और ये होगा जिगरा पॉजिटिव कब? फॉर द राइट हैंडेड रोटेशन विच कैरीज v1 to v2, and positive for right handed rotation, positive for right handed rotation which carries vector v1 to vector v2। तो जिगरा दैट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक्चुअली ये जो है टर्म है क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन इसका दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी है, बिकॉज v1 क्रॉस v2 मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2 साइन थीटा। स्केलर 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 तो स्केलर, लेकिन n कैप यहां पे है वेक्टर, डायरेक्शन है, तो it is a vector quantity, that is why cross product of two vectors is also called vector product of two vectors। so ये था जिगरा definition of cross product और vector product of two vectors।
फिर से दोहराएंगे, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं v1 एंड v2, अगर आपके पास जिगरा दो वेक्टर्स हैं v1 एंड v2 एंड सपोज दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो जिगरा आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये है जिगरा आपका वेक्टर v1, इसको भी रहने दो, ये है आपका वेक्टर v1, ये है आपका वेक्टर v2 एंड सपोज दे आर इंक्लाइंड विद सम एंगल, इनके बीच में कोई एंगल है, इसको अभी रहने दो, ये अभी है ही नहीं, कंसिडर कर दो ये अभी है ही नहीं। तो जिगरा ये आपका वेक्टर v1 है, ये आपका वेक्टर v2 है, आपको v1 और v2 का क्रॉस कर देना है आपस में। तो जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे वो क्या आएगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन वो वेक्टर क्या होगा, दैट वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, वो वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होगा। ये यानी इस वेक्टर का नाम रहेगा v1 क्रॉस v2, ये v1 क्रॉस v2 v1 पे भी परपेंडिकुलर है, ये v1 क्रॉस v2 v2 पे भी परपेंडिकुलर है। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अब इसका नाम क्या है जिगरा, v1 क्रॉस v2, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स, दैट इज v1 का मैग्नीट्यूड इनटू v2 का मैग्नीट्यूड, या v1 का मैग्नीट्यूड इनटू v2 का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इनके बीच में कौन सा एंगल है उसका साइन। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करेगा एक राइट हैंडेड सिक्रू, इसकी डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करेगा जिगरा एक राइट हैंडेड सिक्रू। ऐसे ये वेक्टर v1 है, ये v2 है, तो ये v1 क्रॉस v2 है, तो इसकी डायरेक्शन हमें दे देगा एक राइट हैंडेड सिक्रू, जिसको अगर हम रोटेट करेंगे, तो रोटेट कर दो, वो क्या करेगा जिगरा, रोटेट रोटेट रोटेट, दैट विल कैरी द वेक्टर v1, वेक्टर v1 यहां पे था, लेकिन इसकी डायरेक्शन जब हम मेंशन करेंगे, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी जिगरा, तो ऐसे मतलब जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये वेक्टर v1 को ले जाएगा किस पे, वेक्टर v2 पे। सो v1 cross v2 must be equal to magnitude of v1, magnitude of v2, sin theta n cap, where this is magnitude of vector v1, this is magnitude of vector v2 length. Sin theta is the sign of angle between the two vectors, and what is actually n cap? N cap must be the unit vector along the direction of v1 cross v2, यानी ये आपका v1 cross v2, तो इसी के along जो unit vector होगा that is denoted by what, n cap, where n cap is a unit vector perpendicular to both। तो obviously ये unit vector जब v1 क्रॉस v2, v1 और v2 पे perpendicular है, n cap इसी के along एक unit vector है, तो n cap भी v1 और v2 पे perpendicular होगा, हाँ, and positive। और ये क्या होगा, ये n cap जो इस along unit vector ये पॉजिटिव होगा, कब, फॉर द राइट हैंड रोटेशन, अगर हम इस रोटेशन को राइट हैंड ले लेंगे ऐसे। अब अगर इस रोटेशन को लेफ्ट हैंड ले लेंगे ऐसे, वापस एंटी क्लॉकवाइज, यस एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको रोटेट कर देंगे, तो उस समय इस समय वेक्टर है, अगर ऐसे रोटेट किया तो वेक्टर एन कैप जो है वो पॉजिटिव है, अगर ऐसे रोटेट किया तो वेक्टर एन कैप जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट सेंस में होगा। तो जब अपोजिट सेंस में होगा तो वेक्टर को हम नेगेटिव से मल्टीपल करते हैं, तो उस समय ये बनेगा माइनस एन कैप। सो दैट वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू vectors. So remember, we will use this in the subsequent exercises, in the subsequent concepts also, that is v1 cross v2. In nutshell, in simple words, the cross product of two vectors is equal to the product of their magnitudes, sine of angle between them, into n cap, where n cap is a unit vector perpendicular to both v1 and v2 and positive for the right handed rotation, which carries the first vector v1 to the second vector v2. That's all about the definition. Now from here we have some important observations regarding this cross product or vector product of two vectors. So these observations we will discuss in the next class.